Good morning, students. Today we'll be studying your chapter number 8, Jalebis, of your book It So Happened. This is a supplementary book of your English literature, so we'll be doing this. And to brief, अगर मैं कर दूँ आप लोगों के लिए, so what we're gonna do in this chapter, हम इसके 3 comprehensions हैं इस chapter में. We'll read one comprehension complete. फिर मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगी उस फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की. देन वील रीड कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2. फिर मैं आपको उसकी स्टोरी समझाऊंगी. एंड देन वील रीड कॉम्प्रिहेंशन 3. एंड देन आई विल टीच यू दैट स्टोरी, द होल स्टोरी. बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है और हम वन लाइनर्स में करेंगे तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. सो आप रीडिंग मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है, और मेरे पढ़ाने के बाद भी करोगे. एंड देन यूल नो द स्टोरी, जो आपको अच्छे से समझ आएगी. वील स्टार्ट विद इट. Comprehension 1 में an honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp, slurpy, syrupy jalebis in the market excites him, and the coins in his pockets begin to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweetest temptation. तो एक ईमानदार लड़का अपने पॉकेट में अपने स्कूल की फ़ीस लेके जा रहा होता है. उसको फ़ीस जमा करवानी होती है. और लेकिन वो देखता है वहीं पे, जब वो जा रहा होता है रास्ते में उसे जलेबी की दुकान दिखती है जो बहुत मीठी और बहुत खुशबूदार जलेबी होती है, और उसका मन ललचाने लग जाता है. और उसके पॉकेट में जो पैसे होते हैं वो खनकने लग जाते हैं. वो ना बेटा खनकते हैं, असलियत में नहीं है. ये मत सोचना असलियत में खनकना शुरू हो गया या कूदना शुरू हो गया. उसका मतलब है कि उससे वो ये बोलना चाहता है कि मतलब उसका ध्यान अपने पैसों पे था कि आज मेरे पास पैसे भी हैं और जलेबी भी है, तो आज तो मैं जलेबी खरीद सकता हूँ. लेकिन वो फीस के पैसे थे. बट स्टिल क्या वो कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, ये हम अभी देखेंगे. It happened many years ago. I was in 5th standard at the government school Kambelpur, now called Atak. One day I went to school with 4 rupee in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave, so the fees would be collected the next day. Although all through the day the coin simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. Alright, coins don't talk, they jingle or go khanak khanak, but I'm telling you that they actually spoke. One coin said, "What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of kadai in the shop over there, they are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in their pockets can eat them. And money isn't for nothing, money is meant to be spent, and only they spend it who like jalebis. Look here, your 4 rupees. I said to them, I am a good boy, don't misguide me or it won't be good for you. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after to Allah Mia at Qayamat? You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears and then let me go straight home. The coins disliked what I said so much that they began to speak at the same time. They are such a clamor that passed by in the bazaar starred eyed wide with surprise at me in my pocket. The coin of those days, the wretched thing, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and they were silent. After taking a few steps, I loosened my grip immediately. The oldest coin said, "Here are we trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then if you end up spending us today, I won't get the scholarship money tomorrow. Sweets with the less fees money, fees with the scholarship money. End of the story. Kissa khatam, paisa hazam." Why you are saying isn't why what are you saying isn't right, I replied, but it isn't wrong either. Listen, stop babbling and let me think. I'm not a common sort of boy, but then the jalebis are no common sort of jalebis either. They're crisp, fresh and sweet of and full of sweet syrup. My mouth watering, but I wasn't about to swept away so easily in school. He was among the most promising students in the 4th standard exam. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came to a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I had never once been beaten so far. On the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys for a child to such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. No, it wasn't right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. The coins were so keen on being spent that day they kept us their attempts on persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek through
Thoroughly, I fed up. I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebi. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. Those were in expensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up the whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. So what happened? अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है, जो नरेटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है वो हमें बता रहा है कि ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और उस समय मैं जो है कादम का कम्बेलपुर में रहता था, जिसको आज के डेट में अटक बुलाया जाता है। और इसके जो टीचर थे वो गुलाम मोहम्मद थे। तो वो बोलता है कि मैं अपने घर से जा रहा था, अब 4 रुपये के सिक्के लेके अपने घर की तरफ जा रहा था क्योंकि मुझे फ़ीस जमा करनी थी। लेकिन जब मैं गया वहाँ स्कूल पहुँचा तो मुझे पता चला कि जो सर हमारे गुलाम मोहम्मद हमसे फ़ीस लेते हैं वो आज प्रेजेंट नहीं थे। इसलिए मैं मैंने सोचा ठीक है कि वो मुझे कल फ़ीस जमा करनी है, तो मैं उन्हीं सिक्कों को मैंने रखा और वो सिक्के कुछ नहीं बोले पूरे दिन। लेकिन जैसे ही जब छुट्टी का समय हुआ तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन अब की बार वो सिक्के बहुत तेज़ आवाज़ करने लगे, खनकने लग गए और वो मुझसे बातें करने लग गए। मतलब एक तरीका है, जब देखते हो ना आपको भी कभी कभी कुछ खाने का मन करता है, आपको पता होता है आपके पॉकेट में पैसे हैं, तो यूर लाइक आपका एक तरफ आपका मन कर रहा होता है कि अरे चलना खा ले, अरे चलना। तो वही उसके साथ हो रहा था। बट वो पैसों का बोल रहे कि पैसों उससे कह रहे थे कि भाई तू खा ले, तेरा इतना मन है, इतनी अच्छी अच्छी जलेबीज हैं और जलेबी होती किस लिए, खाने के लिए होती है और उन्हें खरीद कौन सकता है, जिसके पास पैसा होता है, और आज तेरे पास पैसा है तो तू खा ले। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये मतलब गलत बात है, और गुलाम मोहम्मद सर भी गुस्सा होंगे और मैंने तुम्हें खा लिया तो मैं फ़ीस कैसे दे पाऊंगा। और जो गुलाम मोहम्मद है ना वो वैसे भी ऐसे सारे हैं कि अगर उन्होंने मुझे एक बार बेंच पे खड़ा कर दिया तो वो लास्ट छुट्टी होने तक मेरे को नीचे नहीं बिठाएंगे, और फिर मैं अल्लाह मियाँ को भी अपना क्या मुंह दिखाऊंगा, मतलब भगवान जी को या अल्लाह को, जो भी गॉड हैं उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपना कि भाई मतलब मैंने सारे पैसे ऐसे गलत काम के लिए खर्च कर दिए, जो मेरे पैसे फ़ीस के जाने थे। तो ऐसे सोच के वो उन्हें क्या करता है, लेकिन वो बहुत आवाज़ कर रहे होते तो अपनी पॉकेट से निकाल के उन्हें अपनी मुट्ठी में रख लेता है। जब वो मुट्ठी में रखता है तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी ढीली होनी शुरू होती है तो जो उससे पुराना कॉइन होता है वो उसे बोलता है कि अरे भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तुम देखो तो सही, इतनी गरम गरम इतनी ताज़ी ताज़ी जलेबी, इतनी मीठी जलेबी खाने का। तो वो मन में सोचता है कि फिर वो उसे बोलते हैं कि अरे तुम ये देखो ना, अगर तुम इन्हें आज खर्च करोगे तो तुम्हें कल स्कॉलरशिप क्या होती है, बच्चों अच्छे बच्चों को दी जाती है कुछ पैसों के तौर पे। तो वो कह रहे हैं कि तुम आज जलेबी खा लो, कल तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर तुम फीस दे देना। तो वो बोलते हैं कि वैसे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू लड़का हूँ, मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी आए थे पिछले साल और मुझे 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली थी, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे आज तक कभी नहीं डांटा क्योंकि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ और मेरे टीचर्स भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे जैसे बच्चे के लिए ऐसा काम करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो ऐसा करके अपने घर पहुँच जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसको क्या, वो अपने बेड पे बैठता है और उतने में ना उसके कॉइन्स फिर से उससे बात करने लगते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि तू जा पैसे खर्च कर, हमें जाके खरीद। और उतने में फिर क्या होता है कि वो एकदम से इतना ज़्यादा ना वो हो जाता है, परेशान हो जाता है, मतलब इतना वो हो जाता है कि अरे भाई शायद मुझे खाई लेनी चाहिए। वो खड़ा होता है और नंगे पैर जाता है, बेयर फुट मतलब नंगे पैर चला जाता है वहाँ भागते भागते बाज़ार में, और हलवाई से कहता है जी आप 1 रुपये की वो तोल दो जलेबी। और हलवाई भी बहुत एकदम से ना वो पैनिक हो जाता है, पैनिक मतलब एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि अरे भाई एकदम से ऐसे कैसे इसने बोल दिया, क्योंकि उस समय 1 रुपये की वैल्यू भी 20 रुपये, मतलब उस समय सस्ता होता था सामान, और 1 रुपये की कीमत 20 रुपये, आज के 20 रुपये के बराबर होती थी। तो उसने बहुत बड़ा न्यूज़पेपर निकाला हलवाई ने और बहुत सारी जलेबियाँ एक साथ रख के उसको दे दी। ये हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन 1 में बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन 2 में हम दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल थ्रू पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इंपॉर्टेंट देन अ मॉब लीडर। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। उसने जलेबी ले ली, वो खाता भी है और उसने सबके साथ शेयर भी करी है, और जो है वो अब लेकिन वो उसमें पैसे नहीं रहे हैं और वो बहुत परेशान हो गया है, और अब उसे ये लग रहा है कि भाई मैं फ़ीस कैसे भरूँगा। ये हम कॉम्प्रिहेंशन 2 में पढ़ने वाले, आगे का रीड करके बताती हूँ क्या है। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड द टोंगा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू द गली। When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils.
Very quickly, boys of the entire neighborhood assembled in the gully. By the time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun, I started handing out jalebis to the children around. Delighted, they ran off, jumping off, screaming in the gullies. Soon a whole lot of children appeared, probably having heard of the good news from the others. I dashed to the halwai and bought one more rupee worth jalebi. Came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to children, just like the governor Sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. By now, there was a huge mob of children on me. The beggars too launched an assault. If children could be elected by assembly, my success would have been assured that day, because one little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well, for distributed them. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of jalebi all my life. Jalebis I have gobbled up easily enough, but digesting them become another matter. With every breath came a burp, and with every burp, the danger of bringing out jalebi or two. The fear was killing me. At night, I had to eat my dinner as well. If I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. And if I would have pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering from stomachache. Thank God I didn't have to eat all 4 rupee worth jalebis by myself. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouth. But I would have the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. Children don't have stomachs; they have digestion machines. My machine too kept working right through the night. In the morning, just like another day, I washed my face and, like a virtuous student, with chalk and slate in hand, I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship the day, and once I would pay the fees of the amount, the jalebis would be completely digested. But when I got to school, I found that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. I felt it was standing on my head and could not get on my feet again. Even if I tried, Master Ghulam Mohammed announced that the fees would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm, left the school, and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path, I wouldn't have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would have said to Allah Mia, just this one save me. Order a farishta to pass by and drop just 4 rupee in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. The elders had warned me never to cross railway tracks. Fine. The elders had also warned me that one must never eat sweet with one fees money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. सो बेसिकली बच्चों क्या होता है, वो क्या करता है, वो जलेबियाँ जो उसने 1 रुपये की जलेबी खरीदी होती हैं, पहले तो उसको चाचा जान दिख जाते हैं जो कोर्ट से आए हुए होते हैं, तो वो उन्हें चुपचाप से अपने पास को करके छुपाता है और एक गली में चला जाता है जहाँ की वो कॉर्नर पे जाके खड़ा हो जाता है. वहाँ पे बहुत सारे और बच्चे आ जाते हैं तो वो उनको भी जलेबी बांटने लगता है. फिर वो और बच्चे आ जाते हैं, उनको देखा देखी तो 2 रुपये की और जलेबी ले आता है. फिर वो बाकी देखता है कि और भी बेगर्स और बच्चे आ गए हैं, अब तो भिखारी भी आ गए हैं, तो वो 4 रुपये की जलेबी ले आता है. वो मतलब देखता है इतना भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि अगर इलेक्शंस होने होते ना, और जैसे गवर्नर्स होते हैं जिनके इलेक्शंस में लड़ रहे होते हैं मंत्री वो चावल वगैरह बांट रहे होते हैं अपने वोट्स के लिए, वैसे वो जलेबी बांट रहा था, उसको ऐसे लग रहा था. और अगर बच्चों को वोट देना अलाउड होता और उस समय अगर वो इलेक्शंस में होता तो वो पक्का जीत जाता, क्योंकि लोग इतनी भीड़ में थे कि वो उसके लिए मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हो गए थे. और जो है उसने जलेबी इतनी सारी खा ली थी. फिर वो घर जाता है, घर जाके उसको मतलब उसने एकदम से अपना मुंह धो लिया था सब कुछ खिला विला के बांट वाट के, और वो घर ऐसे गया था इनोसेंट बच्चे की तरह कि उसने कुछ खाया ही ना हो. जबकि वो इतना थका, मतलब ये सोच रहा था कि अगर मैंने मुझे रात को खाना भी खाना, अगर मैंने रात का खाना नहीं खाया तो सब मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया. और अगर मैंने झूठ बोला कि डॉक्टर मतलब मैं तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर उन्हें बता देगा कि मुन्ना ने बहुत सारी जलेबी खाई हैं और फिर मैं वैसे ही मर जाऊँगा. तो वो रात भर सिकुड़ के लेटा रहता है और उसको पेट में दर्द होता रहता है. लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, जब वो बोलते हैं तो उनसे मुंह से फूल निकलते हैं. तो मेरे साथ मतलब वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा होता जो बोलता तो उसके मुंह से एक फ्राइड क्रिस्पी जलेबी निकलती. और बच्चे वैसे तो कभी भी मतलब ये नहीं मतलब बच्चों का पेट नहीं होता, बच्चों के पास डाइजेशन मशीन्स होती है, मतलब जो बहुत जल्दी डाइजेशन करती हैं. तो मेरी डाइजेशन वाली जो मशीन थी वो काम करने पे लगी हुई थी पूरी रात. और जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने अपने दांत वात साफ़ किए और मैं अपना मुंह धोया और मैं चौक और स्लेट लेके अपने स्कूल की तरफ बढ़ा, क्योंकि मुझे पता था आज स्कॉलरशिप मिलनी है और जैसे ही मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी
तो बस मेरा काम हो जाएगा और मेरी जलेबियाँ हज़म भी हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलती है, तो उसका सर चकराने लगता है, वो बहुत परेशान हो जाता है वो। और उसे पता चलता है कि गुलाम मोहम्मद सर ने ये चीज़ बोली है कि वो रिसेस में यानी कि ब्रेक टाइम में सबसे बच्चों से फ़ीस लेंगे। तो वो रिसेस होने से जस्ट पहले ही अपना बस्ता उठाता है और वहाँ से भागता चला जाता है। वो कहता है कि मैं उस दिन कहीं भी नहीं रुकता, चाहे पहाड़ आ जाता, चाहे कूचा जाता, और मैं दुनिया के अर्थ के एंड पे जाके ही रुकता। तो और जहाँ आसमान शुरू होता है। तो कहता मैं इतना चलता गया, धरती तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कामेल जहाँ काबेलपुर जो है ख़त्म होता है वो जगह आ गई, यानी कि रेलवे स्टेशन आ गया। और वैसे तो बड़े लोगों ने हमें मना किया था कि हमें रेलवे ट्रैक्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सोचता है मन में कि जब बड़े लोगों ने मुझे ये मना किया था, तो बड़े लोगों ने तो मुझे स्कूल की फ़ीस से जलेबी खाने के लिए भी मना किया था। पर पता नहीं उस दिन मेरे को क्या हुआ और मैंने क्यों खा ली।